بس بڑے دنوں کے بعد زبان کھلے، مبارک کے نوجوان جموں کشمیر یور کھسو ہیرکن مبارک سو سارمی ہے نا، اللہ نے سمان رکھا نہ تو بحری مشکل الگ اٹھایا ہم نے، اب کام ہمارا شروع ہو گیا۔ الیکشن بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ میں ایسا خوش ہوں، ابھی خوشی ہے ہی نہیں، وہ اس لیے کہ ایک پڑاؤ ایک قدم ہم آگے نکل گئے، جہاں ہماری آواز کو سنا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ باقی سن مقصد ہوئی پورا نہیں ہوا ہے، ابھی ہمارا کام باقی ہے، ابھی بیڑا ہم سب نے مل کے اٹھانا ہے۔ ہم نے تھوڑی سی ہمت کی، کوشش کی تو اتنی عزت اتنی امیدیں لوگوں کی ہمارے ساتھ جڑی۔ میں نے بولا ہے ان لوگوں کو 15 سال ہم نے لیگ کھیلا ہے، کیا لیگ سمجھتے ہو؟ ادھر آئرلینڈ سے گندن، کینیا سے گندن، زمبابوے سے گندن ہے نا، لیگ میچ کھیلتے 15 سال کا، 15 سال کا۔ اب ہم کھیلیں گے ورلڈ کپ، اور اب ہم ورلڈ کپ، لیکن ہم 5 سال اب ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان لوگوں کو مبارکباد آپ بھی دیں گے جن لوگوں نے ہم پہ بھروسہ کیا۔ دیکھو ہم اللہ کی رضا کے لیے، اس میں اس کے ہم اپنی ذات کے لیے نہ تھے نہ ہیں اور نہ انشاءاللہ رہیں گے۔ ہماری جو منزل تھی وہ ابھی نہیں، مقصد ابھی پورا نہیں ہوا، یہ بات الگ ہے، ہماری کافی تھوڑا ہے، اور آپ آج کے علاوہ ہمیں ہماری جیت پہ مبارکباد دی۔ میں بارہا کہتا ہوں جب ہمارا وقت آئے گا تو دنیا دیکھیں گے، اور جب ہماری جیت کا جشن ہوگا تو پورا دیش منائے گا، ورنہ جموں کشمیر میں بہت سارے لوگ الیکشن جیت گئے، سرکار بھی بن گئی، لیکن ایک نام الگ اور اس نام کی پہچان الگ ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ ایماندار تھا، ایماندار ہے اور ایماندار رہے گا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی اور آخرت بھی بہتر ہوگی، لیکن سچائی کے راستے پہ ہمیں چلنا ہوگا، اور اس کی زندہ مثال معراج۔ میں جب اسمبلی میں پہلی بار گیا، یقین ماننا گیٹ سے اندر اسمبلی اور سیکٹریٹ تک پہنچنے میں مجھے 15 منٹ لگے۔ راستے میں جتنے بھی لوگ تھے پہلے ہمارے فوٹو کھینچے نا، میں گیا نہیں تھا اس سے پہلے، لیکن لوگ جانتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے وجہ ایک ہی ہے کہ ایمانداری ہے، اور مجھے لوگوں نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ معراج ملک واقعی ایماندار ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اور یہ سچائی میں بڑی بڑی طاقتیں رک گئی، ایک ایماندار کو آگے موقع ملا، اور میرے رب کا وعدہ تھا، میں ہمیشہ لڑتا رہا، اکیلا تھا، لوگ کہتے تھے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، اور ان بڑی بڑی طاقتوں کو روکتے ہوئے دیکھا۔ بہرحال جو بات میں نے بتائی، 15 سال تو ہم نے لیگ کے میچز کھیلے ہیں، کبھی کوالیفائی ہوئے نہیں تھے، لیکن پہلی بار 2024 میں موقع ملا ہے، ورلڈ کپ شروع ہو گیا اور 5 سال ہم کھیلیں گے، اور جو باتیں ہم بولتے تھے یا جن باتوں کی وجہ سے آپ معراج کو جانتے تھے، وہ آپ دیکھیں گے اسمبلی کے اندر مظلوم کی آواز کس طاقت سے اٹھے گی، وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ آج کچھ دنوں کی خاموشی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خوش ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے وعدے ہیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ بیٹھے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں ہمارے مظلوم کا بیڑا کس طرح پہ اٹھائیں گے۔ اگر نہیں اٹھائیں گے تو سوال میرا ضرور اٹھائے گا، اور بہت سارے لوگ جو مجبور لاچار ہوتے ہیں
की बात मैं करता था बार बार आपसे, और उस सिस्टम को ठीक करने के लिए आया हूँ, और 5 साल के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बेहतर डिलीवर करूँगा और सिस्टम को सुधारने में एक अहम रोल अदा करूँगा, जो आज से पहले हमारे लोगों ने न सोचा था न देखा था, लेकिन वैसा ही होगा। हम कुछ नया नहीं करेंगे, जिस मकसद से जिन लोगों को बिठाया गया था उनको उनकी याद दिलाएंगे और उनको उनका काम करवाएंगे और उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे। और जो आवाम हम लोग हैं ये सारे आम आदमी के लिए होते हैं, चाहे कोई भी हो, सरकार बने या लोगों के लिए, ब्यूरोक्रेट आए लोगों के लिए, लेकिन मामला थोड़ा गड़बड़ी का है। रहता है नेता ही हमें सिखाते हैं कि ये फलाना है, इससे फलाना है। हम गुनाह नहीं करते लेकिन गुनहगार समझते हैं, है ना। झूठ को सच और सच को झूठ दिखाना इनकी पुरानी आदत है, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। बहरहाल उम्मीदें रखना, ठीक है, भरोसा रखना, आपकी आवाज को बेबाकी से बुलंद खुद देते हुए आप वही मत सुबह कर बैठे में इलेक्शन खुदा की किस्म हम रास्ते में बात कर रहे थे। हमारा शौक ही नहीं था, शौक ही नहीं था, मजा ही नहीं आया हलफ लेने, मजा ही नहीं था कि हम MLA हैं। किसी ने कहा कि आप अपना हुलिया बदलो, मैंने कहा अभी हुलिया बदलने का वक्त नहीं आया, जिस दिन वक्त आएगा उस दिन हुलिया भी बदलेगा और इसकी सूरत भी बदल जाएगी। अभी नहीं है टाइम, शायद आए, अभी टाइम नहीं। लोग सोचते हैं अभी पहनावे में गड़बड़ी, नहीं, क्योंकि आम आदमी का हुलिया ही नहीं बदला है, उनकी सोच नहीं बदली है, तो हम ऐवान में जाकर कैसे बदल जाएं, है कि ना। ऐसे ही हैं, जैसे हैं वैसे ही जाएंगे, और जिस तर्ज से आए हैं उसी तर्ज पे खड़े होंगे और उसी तर्ज पे लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। और हम आपके इलाके जरूर आएंगे, ख्वाहिश तो हमारी बहुत है। हमने थोड़ी सी हिम्मत की, आप में से एक नौजवान एक आदमी नहीं, मेरे घर का जानना बड़ा जरूरी है। इस घर तो मैंने क्यों पता आज लगे तो पता ही क्या, क्योंकि घर के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। और मैं आप में से एक हूँ, और आप में से भी गया गुजरा हो सकता हूँ, माली एतबार से गाड़ वाड़ी 5 रुपए है कि ना। अब अल्लाह दे रहा है तो लेने में क्या ही दिक्कत है, चलो ऐसा नहीं। लेकिन हमने हिम्मत की। मैं बार बार कहता हूँ, दुनिया के अंदर इंसान जो भी आता है ना वो बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है, चाहे आप इस इलाके से हो या उस इलाके से हो। बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, लेकिन खुद को देखता हूँ तो फख्र होता है। असेंबली में लोग उनको भी देखा, लेकिन जब खुद को देखता था खुशी होती थी। थोड़े मोहरसन आएंगे फख्र होता था हमें, है ना, क्योंकि वो लोग अलग थे, हम अलग थे। हमने धर्म के नाम पे सियासत नहीं की, हमने झूठ की बुनियाद पे सियासत नहीं की, हमने पैसे की बुनियाद पे सियासत नहीं की। और इस दौर के अंदर वोट लिए मगर बिना पैसे की, ये बहुत बड़ी बात है। सोचते हैं पहुंचते हैं वोट दिले, लेकिन अब उनका भरोसा भी साथ लाया। अब 5 साल उस भरोसे पे कैसे उतरना है, ये उन लोगों को पैगाम है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को। मैं बार बार उन लोगों को बता चुका हूँ कि सोचो किस उम्मीद से मजलूम के साथ महराज खड़ा है, और वो ये साफ जवाब है जो महराज बोलता था, वो गलतियां वो ऐप तुम में थे। लो ना, इतने लोगों ने गवाही दी, महराज को कहते थे बदतमीज है, फिर बदतमीज कैसे जीत गए देने हैं। अरे मेरे पीछे तो कोई ताकत भी नहीं थी। जिस दिन अरविंद केजरीवाल आया उस दिन तो हमारे चेहरे पे खुशी थी, लेकिन उससे पहले जब गम के आंसू रोते थे, जब उम्मीदें थी हमें, तब तो वो लोग भी नहीं आए थे। तो सोचो उस दौर में अकेला था और लोग मेरे साथ खड़े थे, और उसका जवाब लोगों ने वोट की ताकत से दिया, बड़ी बड़ी ताकतों को छोड़ दिया। इमाम साहब तितराए, लीडर तितराए, हम तितराए, पैसा भी छोड़ दिया, लेकिन एक महराज के साथ खड़े हो गए, और उसके पीछे उनकी उम्मीदें हैं। और इनको बताने की जरूरत नहीं है अब मुझे एडमिनिस्ट्रेशन को कि तुम गलत हो कि नहीं। ये साबित हो गया, इतने लोगों ने उनके खिलाफ गवाही दे दी। महराज को चुनकर एक बदतमीज को खड़ा कर दिया, और ऐवान में खड़ा करना छोटी बात नहीं। करोड़ों में 90 लोग आए, कितने 90 में एक महराज, तो खुद को समझता हूं करोड़ों में एक। समझ रहे हो?
पहले बताना शायद गलत होता, लेकिन आज सही है, क्योंकि करोड़ों में एक है मेरा। और इस बात को याद रखना, उसके पीछे वजह यही है कि हम ईमानदार हैं, बेबाक हैं। डरने वाली बात तो है नहीं, वो तो एक ही है जिससे इंसान को डर लगना चाहिए। बाकी दुनिया के अंदर यहाँ इतने लोग बैठे हैं, शायरी थोड़े मैर फौजी, शायरी थोड़े मैर काम है, शायरी थोड़े मैरन रटे हुए हैं। हर इंसान का अपना अपना एक तरज है जिंदगी दुनिया में आने का और जाने का। मुझे हाथ लगाने वाली ताकत ये वो कभी जाने ही नहीं, कारण अंत मंत मैसेज समझिए मारन है ना। तो ये चीज समझनी है और इस अवाम का बेड़ा उठाना है। अगर किसी को भी समझ आ रही है तो उसका फर्ज बनता है दूसरे को समझाना। जहन में समझा मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे इस बात को समझाने में अपने इलाके में 10 साल लगे। कितने? 10 साल। प्रिंजो अल्लाह गवाह है, 10 साल। तपन पार्टी रट में छम न जुड़ो नहीं थी जरूर। क्यों? अगर उन लोगों के साथ जुड़ जाता, हो सकता है वो मुझे अपने तर्ज पे काम नहीं करने देते, है ना। लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन जब वक्त आया लेकिन सिर्फ दो कुछ डोडा के इलाके में सिर्फ 2 दिन गया हूं मैं, और उन 2 दिनों में उन्होंने इस बात को समझ लिया, क्योंकि वहां 10 साल मुझे लगे थे। कितने? दावेरी होमन जुदो, लेकिन ये थे। अब स्टेट के अंदर या देश के अंदर बदलाव करने में ज्यादा देर थोड़ी लगती। चिंगारी एक जगह लग जाती है, पूरे इलाके को अपने में ले लेती है। लेकिन अब देखेंगे, ठीक है, बेड़ा सबने मिलके उठाना है। जो याद वही खुश है जो महराज मलिक बन गया, नहीं, एक के बनने से बदलाव नहीं आएगा। एक लकड़ी थोड़ी जलती है, जलाने के लिए 2-4 इकट्ठी करनी पड़ती है, क्या है ना। तो ये चीज समझनी है। अब इक़्तिदार के लिए ईमानदार चाहिए। अब इलेक्शन आएंगे आपके इलाके में, खुद अपन ईमानदार तो फिर देखना बेहतरी कैसे होगी। लेकिन जब हम एक चोर को, बेईमान को उठाकर सत्ता में बिठा देते हैं, सुकत कह रहे इंसाफ कह रहे सुकत कह रहे। और इंसाफ करने के लिए मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे ही आपने वोट देना, खुद खड़े हो जाओ जो उसके अहल है। और दुनिया का सबसे बड़ा काम सियासत का है। मैं दबन से लाग पा रहा हूँ, ये नहीं काम ही चले। जब काम ही अच्छा है, कपड़े क्यों लगे। कश्मीर में मुझे किसी ने कहा, ये बात बता दूंगा, मैंने सुना था बचपन में, नहीं ऐसे हाल के दिनों में। कहता एक शख्स था जो नंगा था, उस समय बहादुर, खबर क्या कश्मीर में कोई था, उस उस नंगा यो शासन पीर, और बड़ा नाम था। 2-4 साल पहले उसकी वफात हुई। पूछता हूँ, मैंने कहा वो नंगे चलते थे तो हम उसे मानते थे, नहीं कश्मीर में भी था कोई मान है पीर सौ, मगर वो शासन नंगे है। क्यों? क्योंकि उसका किरदार था। कपड़ों से आप इंसान की पहचान मत करो, पैसे से उसकी पहचान मत करो। अल्लाह ने इंसान को बनाया सिर्फ माजूर के नाम से, अकल से कमजोर नहीं होनी चाहिए। और अकल सबको दी है अल्लाह के फजल। वो मैं वोट रहे तुम जब मतलब कितने लोगों ने मुझे वोट दिया, है ना। समझदार लोग, सूझबूझ वाले लोग हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत और करनी है, थोड़ी सी कोशिश और करनी है, ठीक है। पाड़न से इंसान चलो सरपंच के इलेक्शन आ रहे हैं, बनाए थोने ईमानदार, उस पता ईमानदार है। गामस मन की पता अपन कुछ और कुछ ईमानदार चल पता होता है, लेकिन हम उसको लेते सोच, लेकिन उस सोच को बदलना है। अभी मैं बना हुआ MLA, इस वक्त लोगों को उम्मीदें बनाए लेकिन ताकत आपने दी है सड़क बनेगी, ताकत आपने दी है सिस्टम सुधरेगा, ताकत आपने दी है आपकी आवाज को बुलंद करेगा। मैं अगर 500 से ऐसे ना वोट है तो पक्कत कर रहा था, पचन लगन काफी करें तो जब हालत आ रहा हो तो मोज याद भी को बहुत लोग मार बहरहाल चलो, चेहरे पे खुशी है, उम्मीदों की उम्मीदें हैं।
याद है जो वही ठीक है, करना अपने इलाके के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, हिम्मत करना, वोट किन दो ना खेले हो तो वहीं चलो वहीं, फिर नहीं समझेंगे। हम पछताते हैं लेकिन जब बात खत्म हो जाती है। मैंने लोगों को बोला था 20 दिन आपके हैं, 5 साल महराज आपको गिन के देगा, और गिन के दूंगा। यही बात होती है, वक़्त पे समझना बड़ा जरूरी है। असल लिहाजा सुनो, लीडर को नहीं चुनते हैं, और जब नहीं चुनते हैं फिर बाद में पछताना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और ये था। और इसका सबूत सबसे ज्यादा दिया है जम्मू के लोगों ने। बीजेपी ने बेड़ा गर्क किया था पूरे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर खत्म कर दी थी, अपने वही इलेक्शन हाव हो, सबसे ज्यादा सीटें पहली बार जम्मू कश्मीर में भाजपा को इस बार दी। भूल गए वो बातें, अब पछताएंगे। फिर सोच रहे थे अब चीफ मिनिस्टर बनेगा, उनको मैं समझाऊंगा, अभी वक्त आएगा, लगेगा, जब बात होगी तो बात करेंगे, ठीक है। और ये जगह